ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ نور کی دنیا چھوٹی سی تھی، بس ایک بستر پر لیٹی ہوئی بیمار ماں، کچن میں رکھے گنتی کے برتن، کیتلی میں پکتی چائے اور بیٹھک سے آتی سگریٹ کی بدبو جو ہر بار اس کی آنکھوں میں آنسو لے آتی تھی۔ وہ بھی 17 سال کی تھی، لیکن زندگی نے اسے جیسے 40 سال کا بوجھ اٹھانے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس کی ماں پچھلے کئی مہینوں سے مسلسل بیمار تھی، مگر سب سے تکلیف دہ بات یہ تھی کہ گھر میں کوئی اس کے درد کو سننے والا نہیں تھا۔ نور کی ماں کی حالت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی، مگر جیسے سب سے زیادہ اس کا سہارا بننا تھا، وہی سب سے زیادہ بے حس نکلا۔ جہانگیر اس کا سوتیلا بھائی تھا، مگر نور نے کبھی دل سے اسے بھائی ماننے سے انکار نہیں کیا تھا۔ ماں کی تربیت میں پلنے والی نور کے دل میں رشتوں کا تقدس کچھ زیادہ ہی گہرا تھا، مگر وقت نے اسے یہ بھی دکھا دیا تھا کہ ہر رشتہ خون سے نہیں، احساس سے بنتا ہے، اور جب احساس مر جائے تو رشتہ محض ایک بوجھ رہ جاتا ہے۔ ماں کی طبیعت اس دن بہت خراب تھی۔ ماں کو چائے بسکٹ زبردستی کھلانے کے بعد دوا کھلا کر کچن میں برتن دھونے شروع کیے ہی تھے کہ اسے اپنی ماں کی کمزور آواز میں فریادیں سنائی دی تو اس کے ہاتھ سے برتن چھوٹ کر زمین پر گر گیا اور وہ بھاگ کر کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کی ماں کا سانس پھولا ہوا تھا اور وہ امداد طلب نظروں سے نور کی طرف دیکھ رہی تھی۔ نور گھبرا گئی۔ اس نے جلدی سے پانی پلایا، ماتھے پر گیلا کپڑا رکھا، مگر کچھ افاقہ نہ ہوا۔ خوف نور کی روح میں اترنے لگا۔ ماں کی ڈوبتی سانسیں اسے تڑپا رہی تھی، دل سے دعائیں نکل رہی تھی کہ کوئی معجزہ ہو جائے، کوئی سہارا مل جائے، مگر امید کی ہر ڈور کچی نکل رہی تھی۔ نور کا ذہن بھٹک کر ایک ہی خیال پر رک گیا، جہانگیر۔ اتنے میں ماں نے کمزور ہاتھوں سے نور کا ہاتھ پکڑا، جیسے کچھ کہنا چاہتی ہوں، لیکن لفظ لبوں تک آ کر رک گئے۔ نور کو لگا جیسے اس کی ماں کی جان ابھی نکلنے والی ہو۔ وہ گھبرا کر ماں کو لٹا کر باہر بیٹھک کی طرف بھاگی، جو اس کے سوتیلے بھائی جہانگیر کا ایک قسم کا ڈیرا تھا، جہاں داخلہ ممنوع تھا۔ وہ تیزی سے بیٹھک کی طرف بڑھی۔ یہاں وہ اکثر اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھتا تھا۔ دروازہ تھوڑا سا کھلا تھا اور اندر سے نشہ آور دھوئیں کی بو آ رہی تھی، جس کا واضح مطلب تھا کہ جہانگیر کمرے میں موجود ہے۔ نور نے کھڑکی سے اندر دیکھا تو اسے سامنے ہی جہانگیر بیٹھا دکھائی دیا۔ اندر کی دنیا کسی اور ہی جہان کی لگتی تھی۔ سگریٹ کا کثیف سا دھواں پھیلا ہوا تھا، عجیب سی بوتلیں میز پر پڑی تھی۔ نور جھجک سی گئی، مگر آج اس کی ماں کی حالت بدتر تھی اور اسے اپنے بھائی سے مدد کی توقع تھی۔ اس نے ہمت کر کے قدم آگے بڑھایا اور ڈرتے ڈرتے آواز دی، مگر جہانگیر نے جیسے سنا ہی نہیں۔ تو اس نے ذرا سا ہاتھ اندر کر کے دروازے پر زوردار دستک دی اور لرزتی آواز میں بولی، بھائی، امی کی طبیعت بہت خراب ہے، وہ شاید سانس نہیں لے پا رہی۔ جہانگیر نے ایک نظر نور پر ڈالی، آنکھوں میں سرخی اور چہرے پر غصہ یکدم نمودار ہوا۔ اس نے جھنجھلا کر بوتل کو میز پر پٹخا، کرسی سے اٹھا اور گرج کر بولا، یہ عورت ہر دوسرے دن مرنے لگتی ہے، مگر مرتی نہیں، بس ڈرامے باز ہے۔ اسے کچھ نہیں ہوتا، جا کر اس کا تکیہ سیدھا کر اور مجھے میرے حال پہ چھوڑ دے۔ نور کے قدم جیسے زمین میں دھنس گئے۔ اس نے پھر کچھ کہنے کی کوشش کی، لیکن جہانگیر نے دروازے پر زور سے ہاتھ مارا۔ اس کی آواز بیٹھک کی در و دیوار سے ٹکرا گئی۔ نور اچھل کر پیچھے ہٹی، اس کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ اس نے اپنا منہ ہاتھوں میں چھپایا اور کمرے سے نکلنے لگی، مگر جیسے ہی وہ مڑی، بیٹھک کے دروازے پر لگا پردہ سرکا اور کمرے میں گلاس پکڑے نوجوان کی کتھئی نظریں اس پر جا پڑی، اور پھر وہ پلکیں جھپکانا بھول گیا۔ نور کا بغیر میک اپ سادہ سا چہرہ جو غم سے بھیگا ہوا تھا، اور آنکھوں میں ایسا درد جو لفظوں میں بیان نہ ہو سکے۔ وہ نشے میں ضرور تھا، مگر اس لمحے اس کا نشہ ختم ہو گیا۔ شاید کوئی انجان جذبہ اس کے اندر جاگ اٹھا تھا۔ وہ اٹھ کر سامنے آیا تو روتی ہوئی نور یکدم گھبرا سی گئی اور مارے شرمندگی کے اس نے نظریں جھکا لی۔ وہ نوجوان کے نگاہوں کی دلچسپی نوٹ کر چکی تھی۔ آخر کو لڑکیوں کی یہ حس تیز ہوتی ہے۔ وہ جانتی تھی کہ وہ آنکھیں اسے ایک اجنبی انداز میں دیکھ رہی ہیں، مگر اس وقت وہ اس پر زیادہ سوچنے کے قابل نہ تھی۔ اس کا دل بس ماں کی حالت پر دھڑک رہا تھا۔
वो तेजी से कमरे से निकली और माँ के पास पहुंच गई। उसने माँ का हाथ थामा जो अब मजीद ठंडा हो चुका था। माँ के होंठ कपकपा रहे थे और वो बहुत मध्यम आवाज में कुछ कहने की कोशिश कर रही थी। नूर ने कान उनके होंठों के करीब किए तो वो धीरे से बोली, हाय नूर, तेरा क्या होगा मेरे बाद? तुझे कौन सीने से लगाएगा? तो वो तड़प सी गई। उसने माँ को पुकारा मगर वो होश में ना थी तो नूर चीखने लगी। अचानक पर्दा हटा और एक लंबा गंधमी रंगत का नौजवान अंदर आया। उसके चेहरे पर फिक्र थी और आंखों में कोई ऐसा जज्बा था जिसे महसूस करके नूर के पसीने छूट गए और गाल सुर्ख हो गए। नूर ने पहले कभी महसूस नहीं किया था। वो शमरेज था, जहांगीर का पुराना दोस्त। क्या हुआ इन्हें? वो नूर की तरफ देखे बगैर बोला तो नूर अपनी हिचकियां लेते रो पड़ी। फौरन पानी लाओ। शमरेज की आवाज पर वो भागकर किचन में गई। नूर बिना कुछ कहे पलट गई। वो माँ के पास जल्दी से पानी का ग्लास लेकर आई तो शमरेज ने उसकी माँ के सर को जरा सा ऊंचा किया और ग्लास को उसके लबों से लगा दिया, लेकिन वो घूंट भरना तो दूर हिल भी ना सकी। तो शमरेज तशवीश से पीछे हट गया। नूर माँ के सीने पर सर रख कर रो दी। अम्मा उठो ना, देखो भाई कुछ नहीं मानता, लेकिन मैं आपको छोड़ नहीं सकती। फिर वो एकदम से उठी और उसने ना चाहते हुए भी शमरेज की तरफ देखकर कहा, आप इन्हें किसी तरह हॉस्पिटल ले जाएं। मैं आपका यह एहसान सारी जिंदगी नहीं भूलूंगी। तो शमरेज ने आहिस्ता से सर हिलाते बोला, ठीक है, मैं गाड़ी निकालता हूँ, आप इनकी ज़रूरी तैयारी करें, मैं इन्हें हॉस्पिटल ले चलता हूँ। शमरेज की बात सुनकर नूर की जान में जान आई। उसके हाथ तेजी से माँ को तैयार करने लगे। उसने फटाफट बक्से से साफ सी चादर निकाली और माँ के इर्द गिर्द लपेट दी, लेकिन जब माँ को उठाने की कोशिश की तो वो उन्हें हिला तक न सकी। वो तो खुद धान पान सी थी। उसे रह रहकर अपने ऊपर गुस्सा आने लगा। इतने में शमरेज अंदर आया और जब उसने देखा कि वो माँ को उठाने की तगो-दो कर रही है तो उसने आहिस्ता से नूर से कहा, आप एक तरफ हो जाएं। और फिर उसने माँ को अपनी बाजुओं में उठाया और तेजी से कमरे से बाहर निकला तो नूर उसके पीछे पीछे लपकी। घर के दाखिली दरवाजे से निकलने से पहले उसकी निगाह बैठक की तरफ उठी, जहां पर उसका भाई जहांगीर दुनिया माफिया से बेगाना कुर्सी पर आरा तिरछा नशे में धुत पड़ा हुआ था। जाने क्यों उसे पहली बार अपने भाई से शदीद नफरत महसूस हुई। आज अगर वो इस काबिल होता तो इसकी माँ यूं गैरों के हाथों में जाते हुए हॉस्पिटल ना पहुंचती। दुख की एक लहर उसके सीने में उठी। शमरेज उन दोनों को लेकर हॉस्पिटल पहुंचा मगर शायद देर हो चुकी थी। उसकी माँ की डेथ को तकरीबन आधा घंटा हो चुका था। डॉक्टर की तस्दीक के बाद नूर घुटी घुटी आवाज के साथ रोने लगी। शमरेज ने आगे बढ़कर उसे तसल्ली देनी चाहिए, जो माँ की लाश से लिपटकर मुसलसल रोई जा रही थी, लेकिन फिर उसकी हिम्मत जवाब दे गई। आंटी की तदफीन हो चुकी थी। इस दौरान उसे नूर की सिर्फ एक दो बार झलक देखने को मिली। फिर न जाने वो कहाँ गोशा नशीन हो गई। वो कई बार उनके घर गया मगर वो सामने ना आई। शमरेज अब बेचैन सा रहने लगा। शाम होते ही उसकी तबीयत अजीब सी हो जाती। वो अपने कमरे में चुप बैठा रहता। नूर का आंसुओं से भीगा चेहरा, स्याह आंखें, लरसता लहजा, कपकपाती आंखें उसके सीने में आग लगा देती। वो कोई ऐसा नौजवान नहीं था जिसके दिल में रहम जागे, लेकिन जब से नूर को देखा वो कुछ बदल गया था। वो जानता था कि जहांगीर में इंसानियत नहीं है और नूर वो एक मासूम सी लड़की जो माँ के लिए तड़प गई अब बिल्कुल तन्हा है। नूर सिर्फ तन्हा नहीं थी बल्कि अपने ही घर में अपने जवान भाई के साथ एक छत तले रहते हुए खौफजदा भी थी। उसकी बेचैनी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। माँ की मौत को 2 हफ्ते गुजर चुके थे, लेकिन घर में जैसे मातम नहीं बल्कि एक अजीब सा मेला लगा रहता था। जहांगीर की हरकत बेहद अजीब हो गई थी। वो अब खुलेआम अपने दोस्तों को घर के अंदर ले आता। ये वही दोस्त थे जिन्हें माँ की जिंदगी में बैठक तक महदूद रखा जाता था। अब वो बैठक की बजाय नूर के कमरे में बैठने लगे थे। नूर के लिए यह सब नाकाबिले बर्दाश्त था, मगर वो खामोश थी क्योंकि उसकी बात समझने वाला कोई नहीं था। जहांगीर की कमीनगी अब हर हद से गुजर चुकी थी। वो न सिर्फ नशे का आदी था बल्कि दिन ब दिन उसकी अंदाज और सोच मजीद गंदी होती जा रही थी।
उसे मुल्क से बाहर जाने का ख्वाब था और उसके लिए उसे पैसों की ज़रूरत थी। नशा और बाहर का ख्वाब दोनों ही उसे किसी भी हद तक जाने पर मजबूर कर रहे थे। अब उसकी नज़रें नूर पर थीं। वो अपनी सगी बहन को बेचने के मंसूबे बना रहा था और नूर उसकी आंखों की ज़बान समझने लगी थी। उसे जहांगीर की नज़रों में वो वहशत नज़र आती थी जो इंसानियत से गिरी हुई होती है। माँ की मौत के बाद वो अनगिनत फिक्रों में उलझ गई और सबसे बड़ी फिक्र तो अपनी इज्जत की हिफाजत थी कि जिसका सोच सोच कर उसकी रातों की नींद हराम हो गई थी। वो कम उम्री में ही पर्दा करने लगी थी, लेकिन अब जहांगीर की वजह से उसकी घर की चादर और चारदीवारी जैसे नंगी होती जा रही थी। एक दिन वो नहा रही थी कि अचानक जहांगीर घर में दाखिल हुआ और जोर जोर से उसे आवाज़ें देने लगा। तो नूर को शदीद गुस्सा आया। हालांकि उसे मालूम भी था कि वो बाथरूम में है, लेकिन वो फिर भी उसे आवाज़ों पर आवाज़ें दिए जा रहा था कि जैसे कोई क़यामत सुग़रा बर्पा हो गई हो। आवाज़ों से अंदाज़ा हो रहा था कि वो अकेला नहीं बल्कि अपने दोस्तों के साथ दाखिल हुआ है, क्योंकि मिली जुली आवाज़ें और कहकहे साफ सुनाई दे रहे थे। और ये बात नूर के लिए इंतहाई परेशान कुन थी कि वो बाथरूम से बाहर कैसे निकले, क्योंकि बाथरूम के ऐन सामने सहन वाक़या था और उसके दोस्त भी अंदर कमरे में जाने के बजाय वहीं पर खड़े थे। और अब वो बाकायदा इसी बात पर तिल मिला रही थी कि जहांगीर उन्हें कमरे में ले जाने की बजाय यहाँ पर क्यों रोके खड़ा है। नूर ने फटाफट गीले बदन पर ही कपड़े पहने और जल्दी जल्दी इस परेशानी के साथ बाहर निकली कि न जाने ऐसा क्या हो गया है कि वो उसे मुसलसल पुकार रहा है। वो जो ही बाहर निकली तो जहांगीर के साथ खड़े बड़ी उम्र के दो मर्द शक्ल से ही अयाश दिखाई दे रहे थे। वो इसे खा जाने वाली नजरों से घूरने लगे। नूर ने फटाफट अपना दुपट्टा फैलाकर अपने गीले बदन को ढांपने की नाकाम कोशिश की, मगर कोई फायदा ना हुआ, क्योंकि गीले बदन पर कपड़े पहनने की वजह से उसकी लॉन की कमीज उसके जिस्म से चिपक गई थी, जिसमें वो खुद भी कंफर्ट महसूस नहीं कर रही थी। नूर के हाथ कपकपा रहे थे। उसने जहांगीर को देखा, लेकिन उसके चेहरे पर शर्म या शर्मिंदगी का कोई तासुर नहीं था, बल्कि एक मकरूह मुस्कुराहट थी। वो मुस्कुराहट जो नूर के दिल को चीर गई। जहांगीर ने बेशर्मी से कहा, 2 कप चाय बना कर ला जल्दी से, और फिर दोस्तों को लेकर अंदर वाले कमरे में बैठ गया। नूर की आंखों में आंसू आ गए। उसका दिल किया कि वो बर्तन उठाकर जहांगीर के सर पर दे मारे या उसका मुंह नोच ले। क्या यह भी कोई बात थी कि वो अपनी बहन को यूं दोस्तों के सामने लाए, बगैर किसी पर्दे के, बगैर किसी वजह के? उसे महसूस हो रहा था जैसे दाल में कुछ काला है। जहांगीर ने उसे अपने दोस्तों के सामने ऐसे बुलाया था जैसे किसी जानवर को गाहक के सामने लाया जाता है। इसी ख्याल से उसका जिस्म लरज उठा। अब क्या वो अपनी बहन ही की दलाली करेगा? नहीं नहीं, वो इतना नहीं गिर सकता। उसने अपने ही ख्याल को रद्द कर दिया, लेकिन फिर जहांगीर के इस इक़दाम ने उसे गहरी सोचों में धकेल दिया। अगर ऐसा नहीं है तो फिर यूं नामहरमों के सामने वो उसे आवाज़ें देकर क्यों बुला रहा था? वो कमरे में अपने दोस्तों को बिठाकर भी तो ये बात कह सकता था। सोच सोच कर उसका दिमाग फटे जा रहा था। जैसे तैसे करके उसने चाय बनाई और किचन में से ही आवाज़ देकर वो ऊपर छत पर चली गई। इस शहर में कोई और रिश्तेदार भी नहीं था कि जिससे वो अपने दिल की बात करती। यकीनन कुछ न कुछ तो गलत हो रहा था या होने वाला था। उसके दिल में तरह तरह के वसवसे पलने लगे। जहांगीर के दोस्तों की नज़रें महसूस करने पर उसके बदन में करंट सा दौड़ गया और दिल में आग भड़क उठी। वो दीवार के सहारा लेकर फर्श पर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। उसी लम्हे उसे अपनी माँ बहुत याद आई। वो कमज़ोर नहीं थी, मगर जहांगीर को इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि उनके सामने इस तरह की हरकत करे। अब तो जहांगीर का जो दिल चाहता था वो करता था, कोई रोक टोक करने वाला नहीं था। उसका दिल चीख चीख कर कह रहा था कि ये मेरा भाई नहीं हो सकता, ये वो शख्स नहीं हो सकता जिसके साथ मैंने बचपन बांटा। वो ये कैसे भूल गया कि माँ ने हमें एक ही झूले में झुलाया था। उसे अपने ही घर के अंदर अजीब सी घिन आने लगी थी। वो पहले रातों को डरती थी, लेकिन अब तो दिन भी महफूज नहीं रहा। वो ये बात बहुत अच्छे से जानती थी कि उसके नशई भाई के बहुत बड़े बड़े ख्वाब थे, जिनको पूरा करने के लिए उसे तगड़ी रकम चाहिए थी। और ऐसा लगता था कि जैसे वो अपनी ख्वाहिश की तकमील में नूर को बेच भी सकता है।
फिर वो हर रोज बहाने बनाकर नूर को अपने दोस्तों के सामने लाने लगा। ये एक दिन की बात होती तो वो कबूल भी कर लेती, लेकिन अब हर दूसरे दिन ऐसा होने लगा तो वो परेशान रहने लगी। वो सब समझ रही थी, बच्ची नहीं थी, मगर बर्दाश्त किए जा रही थी, क्योंकि वो तन्हा थी, बेसहारा थी और उसके सामने कोई दूसरा दर भी नहीं था जहां सर छुपाया जा सकता। वो अल्लाह से फरियाद करती, नमाज पढ़ते हुए भी रोती रहती कि कोई मौजज़ा हो जाए और वो इस परेशान कुन सूरत हाल से निकल जाए, मगर उसे लगने लगा जैसे उसकी सारी दुआएं रद्द हो रही थी। हर दिन उसके लिए अजियतनाक बनता जा रहा था। जहांगीर अब अपने दोस्तों को खाने पर भी रोकने लगा था और उसकी पूरी कोशिश ये होती थी कि नूर ही खाना लेकर अंदर कमरे में आए। एक दिन जब उसने ऐसा करने से इनकार कर दिया तो जहांगीर ने उसे किचन के अंदर ही जोर से थप्पड़ मारा। वो मुंह पर हाथ रखे सकते के आलम में उसे देखती चली गई तो वो गुर्रा कर बोला, आज तो मेरे आगे इनकार किया है, अगर आइंदा ऐसे इनकार किया तो इससे ज्यादा सजा दूंगा। बस इतना जान लो कि अब इस घर का सरबराह मैं हूं। तुम्हें जो भी कहने को बोलूं तुमने बिला चूं चरा मेरी बात माननी है। ये मेरे पैसे वाले दोस्त हैं, अगर ये तुमसे नाराज हो गए तो याद रखो तुम्हें इस पूरे घर में मुंह छुपाने के लिए कहीं जगह नहीं मिलेगी। मैंने बड़ी मुश्किल से इस गरीब खाने पर उन्हें घेर घार कर लाता हूं, तो ये इसलिए नहीं आते कि आकर तुम्हारे नखरे देखें। जरा बंद संवर कर रहा करो। तो वो उसकी बात सुनकर खामोश हो गई। सच तो ये था कि वो एक थप्पड़ खाकर ही उससे इतना डर गई कि मजीद उसकी मार खाने के तसव्वुर से ही उसके बदन पर कपकपी तारी हो गई। एक दिन तो जहांगीर ने हद ही कर दी जब अपने एक दोस्त को कॉल पर उसने कहा कि बाहर का वीज़ा बनवा दे तो रात में नूर को भेज दूंगा। नूर ने वो अल्फाज सुने तो जैसे जमीन उसके पैरों तले से निकल गई। एक दिन उसने दिल कड़ा करके जहांगीर से बात करने का फैसला किया, क्योंकि वो रोज डर डर कर वक्त नहीं गुजार सकती थी। अभी उसने बात शुरू ही की थी कि जहांगीर एकदम से उठकर खड़ा हो गया और बोला, ये गैरत इज्जत से पेट नहीं भरते, इसलिए ये तकरीर मेरे सामने झाड़ने का कोई फायदा नहीं। जहांगीर ने झुंझुलाए हुए कहा और घर से बाहर निकल गया। नूर ने उस दिन फैसला कर लिया था कि अब वो मजीद इस घर में नहीं रह सकती। वो या तो मर जाएगी या फिर भाग जाएगी, क्योंकि जिंदगी की ये शक्ल अब उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी थी। उसे अब अपना आप एक बंद गली में महसूस होता। वो जान चुकी थी कि जहांगीर उसकी कीमत लगाने पर तुला हुआ है और जिस दिन उसे मतलूबा गाहक मिल गया तो वो उसे बेचने में देर नहीं लगाएगा। और इससे पहले कि ऐसा हो वो यहाँ से भाग जाना चाहती थी, मगर उससे पहले कि वो उस पर अमल करती, जहांगीर 2 दिन से गायब था। वो घर नहीं आया। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। उसके पास मोबाइल भी नहीं था कि वो उससे राब्ता करती। नूर का दिल हर पल किसी अनहोनी के खौफ में डूबा रहता। वो यूं तो उसकी वापसी से हमेशा खाइफ रहती थी, मगर इस बार उसका यूं अचानक 2 दिन से घर ना आना तशवीश में मुब्तला करने लगा। घर की खामोशी अब वहशत बन चुकी थी। वो जरा सी आहट पर दिल धड़क उठता। कभी वो दरवाजे की तरफ देखती, कभी फोन की तरफ, मगर ना कोई खबर थी ना कोई पैगाम। 2 दिन पहले वो नशे की हालत में घर से निकला था और तब से वापस ना आया। ना किसी दोस्त का नाम लिया और ना कोई पता बताया था। नूर के दिल में कई सवाल उभरने लगे थे। अगर वो कहीं गिरफ्तार हो गया है तो क्या होगा? अगर वो किसी मुसीबत में है तो क्या वो उसे बचाने के काबिल है? मगर फिर फौरन एक ख्याल आया कि अगर उसे कुछ हुआ भी हो तो क्या वो इस लायक है कि उसके लिए फिक्रमंद हुआ जाए जो उसे बेचने की कोशिश कर रहा है, इसकी इज्जत को सरे बाजार नीलाम करना चाह रहा है। उसने अपने भाई के लिए वो सारे जज्बात दफन कर दिए थे जो एक बहन के दिल में हो सकते हैं, मगर मसला ये था कि वो मुकम्मल तौर पर तन्हा थी। ना कोई रिश्तेदार था, ना कोई वाकिफकार था, ना ही कोई हमराज। और अब ये तन्हाई उसे घुटन बनकर जकड़ रही थी। जहांगीर के चंद दोस्तों का उसे इल्म था, मगर उनसे राब्ता करने में वो झिझक रही थी। उनके सामने जाना उसे अपनी बेबसी की तशहीर लगता था। और फिर वो जानती थी कि उनमें से ज्यादातर बदनीयत लोग थे। अगर उन्होंने जान लिया कि नूर घर में अकेली है तो इसका अंजाम क्या होगा? वो सोच कर ही कांप जाती
और इसीलिए खामोशी से उसके लौट आने की मुंतजर थी। उस दिन भी वो कमरे के एक कोने में बैठी सोचों में गुम थी कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। वो एकदम से चौंकी, दिल जैसे हलक में आ गया, खौफ ने बदन जकड़ लिया। दस्तक हल्की थी मगर मुसलसल हो रही थी। ये दस्तक जहांगीर की नहीं थी। वो जहांगीर की दस्तक को अच्छी तरह से पहचानती थी। उसने झिझकते हुए दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए, पर्दे के पीछे से झांक कर बाहर देखने की कोशिश की, मगर कोई नजर न आया। दिल में 100 तरह के खदशे सर उठाने लगे कि कहीं जहांगीर के वही बदनाम अयाश दोस्त तो नहीं, कहीं वही ना हो। ये सोचते सोचते उसने हिम्मत करके बिलाखिर दरवाज़ा खोला और सामने का मंजर देखकर वो लम्हा भर को साकित रह गई। शमरेज दरवाजे के सामने खड़ा था, वही शमरेज जिसे वो एक लंबे अरसे बाद देख रही थी। ये वही था जिसकी नज़रों ने इसकी तकलीफ को समझा था और जिसने माँ की बीमारी के वक्त उसे अस्पताल तक पहुंचाया था। नूर को याद था वो लम्हा जब वो माँ को संभाल नहीं पा रही थी और यही शमरेज बिना कुछ कहे उसके साथ खड़ा हो गया था। लेकिन अपने दरवाजे पर शमरेज की मौजूदगी ने नूर को हैरत में डाल दिया। उसने ज़रा सा दरवाज़ा खोला तो शमरेज ने उसे सलाम करके उसकी खैरियत पूछी तो उसने मुख्तसर सा जवाब दिया। शमरेज ने नरमी से कहा, घबराओ मत, मैं अंदर नहीं आऊँगा, लेकिन तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। शमरेज की बात सुनकर नूर हक्का बक्का रह गई और एकदम दरवाजे की आड़ में से इंतहाई गुस्से से बोली, क्यों, कहाँ जाना है? सब खैरियत तो है? जहांगीर कहाँ है? जहांगीर बिल्कुल ठीक है। क्या उसने तुम्हें कुछ नहीं बताया कि वो दुबई चला गया है? तो ये बात सुनकर नूर के पैरों तले से ज़मीन निकल गई। उसने शमरेज से कहा, ये क्या कह रहे हो? ऐसा नहीं हो सकता कि वो मुझे बताए बिना इतनी दूर चला जाए। ठीक है, अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं आ रहा तो किसी और से पूछ लो, लेकिन मैं बस तुम्हें सिर्फ ये कहने के लिए आया हूँ कि अब तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, क्योंकि मेरे और जहांगीर के दरमियान में यही तय हुआ था। तुम्हारे और उसके दरमियान जो तय हुआ था उसमें मेरा क्या लेना देना? देखो, यहाँ गली में खड़े रहकर मेरा इस तरह से बात करना मुनासिब नहीं है। बेहतर होगा कि तुम मेरे साथ घर चलो, वहीं चलकर सारी बात करते हैं। नूर को उसकी बात पर शदीद गुस्सा आया और वो इंतहाई दुरुस्त लहजे में बोली, मैं किसी सूरत तुम्हारे साथ घर नहीं जाऊंगी। तो ठीक है, अपने भाई से बात करो। फिर उसने अपने मोबाइल से नंबर मिलाया तो नूर का दिल बेतरतीब धड़कने लगा। इतने में शमरेज ने अंदर आने की इजाज़त मांगी, मगर नूर ने सख्ती से मना कर दिया। वो नहीं चाहती थी कि उसके भाई की गैर मौजूदगी में कोई मर्द यूं दंदनाता हुआ उसके घर में दाखिल हो, जबकि सारा मोहल्ला भी ये बात जानता है कि वो घर में अकेली रह रही है। इसलिए वो बदनामियों को आवाज़ नहीं देना चाहती थी। शमरेज ने खामोशी से मोबाइल दरवाजे के ज़रा से खला से उसकी तरफ बढ़ाया और बोला, ये लो, खुद जहांगीर से बात करके तसल्ली कर लो। नूर ने हैरत से मोबाइल की तरफ देखा। दिल में शको शुबे की लहरें उभरी, मगर हालात ऐसे थे कि फ़ोन पकड़ने के अलावा चारा भी कोई नहीं था। उसने हाथ बढ़ाकर फ़ोन थामा। जैसे ही फ़ोन को कान से लगाया, दूसरी तरफ जहांगीर था, मगर वही रिवायती बेहसी और दुरुस्ती उसके लहजे में छुपी थी। सलाम दुआ कहे बगैर ही बोला, ये क्या तमाशा लगा रखा है तुमने? मैंने सुना है कि तुम शमरेज के साथ नहीं जा रही। तो नूर जहांगीर की इस बात पर एकदम से बौखला गई और बोली, जहांगीर तुम हो कहाँ? पहले तुम मुझे ये बताओ। तो वो एकदम से बोला, क्यों, तुमने क्या मुझे पैसे भिजवाए हैं? और फिर अपनी ही बात पर अजीब सा कह कहा लगाया। तो नूर को उसकी दिमागी हालत पर शुबा सा होने लगा। ये क्या ओल फोल बातें कर रहे हो? सीधी तरह मुझे बताते क्यों नहीं कि तुम कहाँ हो? भाई, मैं तो दुबई बैठा हूँ, उसकी ठंडी ठंडी हवाएं खा रहा हूँ, बहुत मज़े में हूँ। तुम दुबई कब गए? 2 दिन पहले आया हूँ यहाँ। तो मुझे क्यों नहीं बताया? हर बात तुम्हें बताना ज़रूरी नहीं समझता, और अब जो बात बता रहा हूँ उसे कान खोल कर सुन लो। मैंने शमरेज साहब से ठीक ठाक पैसे लिए हैं, लिहाजा तुम्हें अब शमरेज जो भी कहेगा तुम्हें वो मानना पड़ेगा। तो वो सटपटा कर बोली, क्यों मानना पड़ेगा? पैसे तुमने लिए हैं और बातें मैं इसकी मानूं? ये क्या फजूल बातें कर रहे हो? तो वो एकदम चीख कर बोला, बहुत पर निकल आए हैं तुम्हारे।
तुम्हें इतनी सी बात समझ नहीं आती कि मैंने शमरेज से पैसे लिए हैं। हमारे दरमियान यही तय हुआ था कि पैसों के एवज तुम उसके साथ जाओगी। तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि तुमने मुझे अपने दुबई के ट्रिप की खातिर बेच डाला है। तुम भाई नहीं दलाल हो, बहुत ही बेगैरत हो। तुम्हें शर्म नहीं आई ये हरकत करते हुए? तो उसने एकदम से फोन काट दिया, लेकिन नूर कॉल बंद होने के बाद भी मोबाइल कान से लगाए खड़ी रही। उसका पूरा बदन कांप रहा था। उसने लरसते हाथों के साथ मोबाइल जब शमरेज की तरफ बढ़ाया तो शमरेज ने उसकी उंगलियों की कपकपाहट देखी तो जाने क्यों उसे दुख सा हुआ। लेकिन अपने ही भाई की बातें सुनकर नूर को ऐसे लगा जैसे उसकी सांसें ही रुक जाएंगी। उसके अपने भाई ने उसे माले मुफ्त की तरह अपने दोस्त को बेच डाला, जिसका तसव्वुर भी वो नहीं कर सकती थी कि उसके साथ ऐसा भी कुछ हो जाएगा। शमरेज की नजरें उस पर जमी थी, मगर उसमें वो सख्ती नहीं थी जो जहांगीर की बातों में थी। शमरेज ने एक गहरी सांस ली और आहिस्ता से बोला, नूर, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा और ना किसी जबरदस्ती का इरादा है। जहांगीर ने तुम्हें वाकई मेरे हवाले कर दिया है। उसने मुझसे वादा किया था कि अगर मैं उसका वीज़ा बनवा दूं तो वो तुम्हें मेरे साथ जाने देगा। अब ये सब तुम्हारे सामने है। नूर को महसूस हुआ जैसे ज़मीन उसके कदमों से निकल गई हो। ये कैसा सौदा था, ये कैसा भाई था जो अपनी बहन को यूं किसी के हाथों में थमा गया। उसने दरवाजे की दराज से झांका तो शमरेज अब भी वहीं खड़ा था, मगर उसकी आंखों में कोई ऐसी चमक नहीं थी जिससे नूर को खौफ आता। वो बोला, मैं तुम्हें मजबूर नहीं कर रहा कि तुम आज ही मेरे साथ जाओ, लेकिन सच तो यह है कि मैं तुम्हें इस घर में एक दिन भी और तन्हा नहीं छोड़ना चाहता। अब फैसला तुम पर है, खुद सोच लो। जवान जहान हो, ऐसे में अकेली घर पर रहना, वो भी इस शहर में जहां पर कदम कदम पर खतरा है, क्या मुनासिब होगा? नूर ने उसे जवाब दिए बगैर ही दरवाज़ा बंद कर दिया। वो जानती थी कि जहांगीर ने अब उसे रिश्ता मुकम्मल तोड़ दिया है। उसे अपनी बहन से ज़्यादा अपना वीज़ा अजीज़ था और वो बाहर जा चुका है, लेकिन अपने मफाद की खातिर इसे कुर्बान कर गया। वो भागते हुए कमरे में आई और अपने बिस्तर पर गिरकर रोने लगी। दिल के अंदर सवालों की आग लगी हुई थी। क्या वो वाकई शमरेज पर भरोसा कर सकती है? क्या वो शख्स जिसने उसके लिए एक बार मदद की थी अब भी वही है, या उसके अंदर भी जहांगीर की तरह कोई दरिंदा छुपा है? रात भर वो करवटें बदलती रही। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। एक तरफ जहांगीर की बेवफाई थी और दूसरी तरफ शमरेज का दरवाजे पर आना। वो अगर आज आया है तो यकीनन बार बार आएगा, जब तक वो उसके साथ ना चली जाए। लेकिन क्या यूं एक नामहरम के साथ, जिसे वो अच्छे से जानती भी नहीं, जाना मुनासिब होगा? वो कश्मकश में मुब्तला हो गई। भला वो जहांगीर के दोस्त के साथ जाकर क्यों रहे? ये तो इंतहाई गुनाह की बात है। वो कम उम्र जरूर थी, लेकिन नासमझ नहीं थी। अगला दिन खैरियत से गुजरा, लेकिन जो ही रात गहरी हुई तो दरवाजे पर फिर से हल्की सी दस्तक हुई तो उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। यकीनन ये शमरेज ही होगा। मैं उसे कैसे मना करूं? कल भी दरवाजा उसके मुंह पर बंद किया था, लेकिन आज ये फिर आ गया। खुदाया, मैं क्या करूं? उसका दिल अंदर ही अंदर से रोने लगा। मैं दरवाजा किसी सूरत नहीं खोलूंगी। वो कमरे में टहलने लगी, मगर दरवाजे पर मुसलसल दस्तक होती रही। दरवाजा खोले बगैर चारा नहीं था। वो दरवाजे के करीब गई तो शमरेज ने कहा, दरवाजा खोलो। इसने आहिस्ता से जरा सा दरवाजा खोल दिया। मैं तुम्हें लेने आया हूं। मैं इससे ज्यादा तुम्हें वक्त नहीं दे सकता। तुम्हें अभी और इसी वक्त मेरे साथ चलना है। मैं तुम्हारे साथ किसी सूरत नहीं जाऊंगी। तुम्हें ये बात क्यों समझ नहीं आती? लेन देन तुम्हारा मेरे भाई के साथ हुआ है, मेरे साथ नहीं। मुझे बीच में मुलविस करने की जरूरत नहीं है, वरना मैं शोर करके पूरे मोहल्ले को इकट्ठा कर लूंगी, तो यहां से तुम्हें कोई भागने भी नहीं देगा। उसकी बात सुनकर शमरेज को एकदम से गुस्सा आ गया और वो बोला, तुमने शमरेज को बहुत ही हल्का अंडर एस्टिमेट किया है। अगर तुम्हें यह ख्वाहिश है कि तो शोर शराबा करके देख लो। तुम्हारे मोहल्ले वालों में इतनी जुर्रत नहीं कि वो शमरेज के सामने खड़े हो सके। मैं तुम्हें बहुत इज्जत से यहाँ ले जाने के लिए आया हूँ, लेकिन शायद लगता यह है कि तुम्हें इज्जत रास नहीं।
मैं चाहूं तो अभी भी तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें घसीटते हुए अपने साथ ले जा सकता हूं। लिहाजा सोच लो कि तुम क्या चॉइस करती हो। इज्जत से गाड़ी में बैठोगी या मैं तुम्हें कलाई से पकड़कर लेकर जाऊं? तो एकदम घबरा कर बोली, मुझे आज का वक्त दो, मैं कल चली जाऊंगी। तो शमरेज थोड़ी देर के लिए चुप हो गया, फिर आहिस्ता से बोला, ठीक है, मैं तुम्हें सिर्फ आज रात तक का वक्त दे रहा हूं। कल सुबह सूरज तुलू होते ही मैं आऊंगा और तुम्हारा इनकार नहीं सुनूंगा। ये कहकर वो तो चला गया, लेकिन नूर वहीं दरवाजे के पास ही बैठ गई। उसकी टांगों से जान निकल चुकी थी और दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसकी इज्जत शदीद खतरे में थी। लिहाजा उसने एक प्लान बनाया कि क्यों ना मैं यहां से भाग जाऊं। अल्लाह की इतनी बड़ी दुनिया है, कहीं ना कहीं तो मुझे पनाह मिल ही जाएगी। लेकिन मैं ये जिल्लत भरी जिंदगी नहीं गुजारूंगी। जो ही रात के साए गहरे हुए तो उसने हल्का सा सर निकालकर बाहर गली में देखा, जहां पर स्ट्रीट लाइट की मध्यम सी रोशनी थी और पूरी गली सुनसान थी। उसने एक शॉपर में 2 जोड़े रखे और घर को ताला लगाकर दबे कदमों से गली में निकल आई। मोहतात नजरों से वो इर्द गिर्द देखती जा रही थी और साथ ही साथ अल्लाह से मदद भी तलब कर रही थी। वो जो ही मेन रोड पर आई तो इक्का दुक्का गाड़ियां सड़क पर देखकर परेशान हो गई। कहाँ जाऊं? मेरे पास तो रकम भी महदूद है, क्या इस रकम में मैं दूसरे शहर जा सकूंगी? वो अभी यही सोच रही थी कि उसके पास एक जीप आकर रुकी। इससे पहले कि वो कुछ समझती, जीप का दरवाजा खुला और उसमें से एक शख्स चेहरे पर मास्क लगाए छलांग मारकर बाहर निकला और उसकी तरफ तेजी से आया। तो वो बौखला गई। इससे पहले कि वो वहां से जाती, उस शख्स ने इसकी कलाई जोर से मरोड़ी और फिर जो ही उसने अपना मास्क उतारा तो नूर को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसका दिल अपने हाथ में जोर से दबोच लिया हो। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि वो कोई और नहीं शमरेज ही था, जो उसे इंतहाई गुस्से से देखकर बोला, तो तुम भाग रही थी? तुमने क्या समझ रखा है कि शमरेज तुमसे इतना गाफिल है कि तुम भागने का फैसला करोगी और वो तुम्हें आसानी से जाने देगा? शमरेज, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती। तो उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट आई। तुम्हें मेरे साथ जाना है या नहीं, इसका फैसला तुमने नहीं, मैंने करना है। और फिर ये कहकर वो उसे जबरदस्ती जीप तक लाया और जीप के अंदर धकेलकर जीप का दरवाजा बंद किया और जीप स्टार्ट कर दी। नूर रोने लगी, क्योंकि अब उसका इख्तियार सिर्फ अपने आंसुओं पर ही था। तकरीबन आधे घंटे के बाद जीप एक बड़े से फार्म हाउस के गेट के पास जाकर रुक गई। शमरेज नीचे उतरा और उसने नूर को भी नीचे उतरने का कहा और फिर वो उसे लेकर एक कमरे की तरफ बढ़ा। उसे इशारे से कमरे के अंदर जाने का कहा। जो ही वो कमरे के अंदर दाखिल हुई, शमरेज ने दरवाजे को बंद कर दिया तो वो बिलक बिलक कर रोने लगी। ये तुमने अच्छा नहीं किया जहांगीर, अल्लाह तुम्हें इसकी सजा दे। तुम सौतेले ही थे, लेकिन भाई तो थे। अपनी अयाशी की खातिर तुमने मेरी इज्जत दांव पर लगा दी। या अल्लाह मेरी मदद कर या फिर मुझे मौत दे दे। वो जमीन पर बैठ गई और हाथों में अपना चेहरा छुपाए खामोशी से रोने लगी। आंसू उसके गालों से बहते जा रहे थे। अचानक उसे ऐसे लगा जैसे कोई उसके पास, उसके बेहद करीब है। उसने सर उठाकर देखा तो सामने ही शमरेज उसके इतने करीब बैठा था कि वो डर कर पीछे हट गई। इसकी बड़ी बड़ी हिरनी जैसी आंखें उसे देखकर फैल गईं। शमरेज ने हाथ बढ़ाकर उसके चेहरे पर आए बाल पीछे करने की कोशिश की तो वो एकदम से चीख कर पीछे हटी, लेकिन उसके पीछे बेड था तो वो एकदम से उसके सामने हाथ जोड़कर बोली, तुम्हें अल्लाह का वास्ता है, मुझे हाथ मत लगाना। तो शमरेज एकदम से पीछे हटा। इतना मत रो, मैं तुम्हारे मामले में बुरा नहीं हूं। इससे ज्यादा क्या बुराई होगी कि तुमने मुझे खरीदा है। तुम मेरे खरीदार हो और मेरा पैसा लेने वाला कोई और नहीं, मेरा भाई है। उसने कर्ब से बात करते अपनी आंखें बंद कर ली तो उसका ये रूप देखकर शमरेज पिघल सा गया। देखो, वो मेरी मजबूरी थी। अगर मैंने तुम्हारे इवज पैसा दिया है तो मैं तुमसे मोहब्बत कर बैठा हूं, किसी और का तुम्हें होता नहीं देख सकता। और मैं जहांगीर को भी जानता था कि वो पैसों के इवज कुछ भी कर सकता है, लिहाजा मैंने उसकी बात मान ली। तो क्या गलत किया? तुम मेरी तरफ ऐसे क्यों देखती हो कि जैसे मैंने कोई गुनाह कर दिया हो?
अब भी एक नेक मकसद की खातिर तुम्हारे पास आया हूं। तो एकदम से बौखला कर बोली, क्या मकसद? निकाह करना चाहता हूं तुमसे। निकाह? नहीं, ये तो जबरदस्ती है। तो वो एकदम खड़ा हो गया और कमरे में टहलने लगा। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई तो उसने गर्दन मोड़कर देखा। उसका खास मुलाजिम नजरें झुकाए दरवाजे पर खड़ा था। सर, निकाह ख्वां आ चुका है। दरवाजे पर खड़े मुलाजिम की आवाज ने कमरे में गोया धमाका कर दिया। कुर्सी पर बैठा शमरेज खानजादा इस इत्तला का ही तो इंतजार कर रहा था। हल्की सी मुस्कुराहट उसके होंठों पर नमोदार हुई, लेकिन उसकी मुस्कुराहट में एक इज़्तिराब सा था। नूर ने एकदम सर उठाया, आंखें सूजी हुई, चेहरा जर्द, वजूद लरसता हुआ। उसने नफी में सर हिलाया, लेकिन होंठों से एक लफ्ज भी ना निकल सका। बस आंखें रोई हुई शिकवा कना थी। शमरेज आहिस्ता आहिस्ता चलता उसके करीब आया और सामने घुटने टेक कर बैठ गया। तुम्हारे पास और कोई हल नहीं है नूर। उसके लहजे में नरमी मगर मुकम्मल इख्तियार की सख्ती थी। तुम्हें हर हाल में मुझसे निकाह करना ही होगा, वरना मुझे तुम्हें बगैर निकाह के अपने साथ रखना होगा। नूर की सांसें चढ़ने लगी जैसे किसी ने गले पर तलवार रख दी हो। रिहाई तो तुम्हारी किसी सूरत मुमकिन नहीं, क्योंकि तुम्हारी बहुत बड़ी कीमत अदा की है मैंने। शमरेज ने आहिस्ता से उसके सर पर दुपट्टा डाला, जैसे कोई फातेह अपनी फतूहात पर झंडा गाड़ता है। नूर के लब थरथराए। मुझे छोड़ दो। शमरेज का हाथ उसकी ठोड़ी पर आ गया और उसने नरमी से इसका चेहरा ऊपर किया। निकाह कर रहा हूं, कुछ गलत नहीं कर रहा, लेकिन तुम्हें समझने में वक्त लगेगा। नूर ने एक बार फिर नफी में सर हिलाया। यह निकाह नहीं, जबरदस्ती का सौदा है। शमरेज ने चंद लम्हे उसे देखा, फिर उठ खड़ा हुआ। तो फिर जबरदस्ती ही सही। वो कमरे से बाहर निकला तो मुलाजमा ने उसे सख्ती से उठाया और बाहर लाउंज में ले आई। वो बेजान सी हो रही थी, उसे चुप सी लग गई। निकाह ख्वां ने सवाल किया, कबूल है? नूर ने खामोशी इख्तियार की। शमरेज ने गहरी नज़र उस पर डाली और पास खड़े मुलाजिम की तरफ इशारा किया। मुलाजिम आगे बढ़ा, नूर के करीब जाकर उसके कान में धीरे से कहा, अगर आपने कुछ कहा नहीं तो शमरेज साहब का हुक्म है कि। नूर के होंठ कपकपाए, उसके हाथ कांपने लगे। कबूल है, ये लफ्ज उसने जबरदस्ती अपनी रूह से नोच कर निकाले। 3 बार कबूलियत के बाद निकाह मुकम्मल हो चुका था। कमरा मुबारकबादों से गूंज रहा था, लेकिन नूर की दुनिया अंधेरे में डूब चुकी थी। नूर ने आंख उठाकर कमरे की तरफ देखा तो कमरा मोतियों के फूलों से सजा हुआ था। मोती के फूल उसे बेइंतहा पसंद थे। उसे हैरत थी कि उसकी पसंद का शमरेज को कैसे पता चला। वो खाली दिमाग कमरे का जायजा ले रही थी कि एकदम दरवाज़ा खुला और शमरेज अंदर दाखिल हुआ। नूर फौरन खड़ी हो गई तो वो उसे दुल्हन के रूप में देखकर शशतर रह गया। उस पर खूब दुल्हन का रूप चढ़ा था। वो मुस्कुराते हुए उसके करीब जो ही आया तो अगले लम्हे नूर ने एक ऐसी हरकत की जो खुद शमरेज के वहमो गुमान में भी नहीं थी। उसने अपने सर से भारी कामदार दुपट्टा उतारा और उसे अपने कदमों से जरा दूर जमीन पर फेंक दिया। अब सिर्फ मेरा जिस्म हासिल करना चाहते थे ना शमरेज? लीजिए, हाजिर है। उसकी आवाज कांप रही थी। ये कहकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। शमरेज को शदीद झटका लगा और वो वहीं रुक गया। तुम गलत समझ रही हो, तुम क्यों ऐसी बात सोच रही हो? वो आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब आया, अपना हाथ बढ़ाया, मगर नूर की आंखों में धुंधलाहट सी होने लगी। उसकी पलकें बोझल हो गई। इससे पहले कि शमरेज उसके करीब आता वो त्योरा कर गिर पड़ी, मगर उससे पहले ही शमरेज ने उसे अपने हाथों में थाम लिया। वो उसे आवाज़ें देने लगा, मगर उसका जिस्म ठंडा होता जा रहा था और सांसें रुक रुक कर आने लगी, तो वो बुरी तरह घबरा गया। फौरन गाड़ी निकालो, उसने अपने खास मुलाजिम को चीख कर कहा और फिर नूर को अपनी बाहों में उठाया और गाड़ी में डालकर सीधा अस्पताल ले गया, जहां उसे फौरन आईसीयू में शिफ्ट किया गया। डॉक्टर्स ने बताया कि उन्होंने किसी बात का शदीद सदमा लिया है। अगले 24 घंटे इंतहाई क्रिटिकल हैं, बस आप दुआ करें। तो वो परेशानी से टहलने लगा। उसने पहली बार अपनी जिंदगी में कोई रिश्ता इंतहाई मुखलिस होकर बनाया था, बाकायदा निकाह किया था, वरना उसकी जिंदगी में कई लड़कियां आई थी,
जिनसे कभी उसका निकाह करने का दिल ना किया, लेकिन नूर को देखते ही उसका दिल हौल उठा था कि यही वो लड़की है जिसे बीवी बनाकर एहतराम के साथ घर में रखा जाता है। लिहाजा घर लाते ही उसने निकाह का बंदोबस्त किया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो उस पर गलत निगाह डाले। लेकिन नूर, तुमने मुझे समझने की कोशिश ही नहीं की, इस कदर बदगुमान हो मुझसे। वो शीशे की दीवार के पार नूर को देखते ही रो दिया। यार, पहली बार किसी को टूट कर चाहा था, मगर कोई हम बुरे लोगों को समझने की कोशिश ही नहीं करता। क्या हमारे सीने में दिल नहीं होता? क्या हम जैसे लोग किसी से मोहब्बत नहीं कर सकते? उसने अपनी आंखें साफ की और फिर दिल ही दिल में इरादा बांधा कि जो ही नूर ठीक हो गई वो इसको इस रिश्ते से आज़ाद कर देगा, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि जिस लड़की को उसने अपने दिल में बसाया है वो उसके साथ कुड़ कुड़ कर जिंदगी गुजारे। या अल्लाह, तू इसे एक दफ़ा ठीक कर दे। क्या तू मुझ जैसे बुरे आदमी की दुआ कबूल करेगा? वो दिल ही दिल में कई बार अल्लाह को बार बार मुखातिब करने लगा। बस एक बार अल्लाह जी, बस एक बार, इसे होश आ जाए, फिर जैसा ये कहेगी मैं वैसा करूंगा। अगर ये जाना चाहेगी तो इसे इज्जत के साथ रुखसत कर दूंगा। इसे छूना तो दूर की बात, इसकी तरफ देखूंगा भी नहीं। वो बिलक बिलक कर रो रहा था। तभी शायद उसकी दुआएं बारगाहे इलाही में कबूल हो गईं। नूर को होश आ गया तो वो दौड़कर उसके पास गया। वो बेहद कमज़ोर हो चुकी थी। डॉक्टर ने बताया जिस्मानी कमज़ोरी, जहनी दबाव और भूख की वजह से मुन्नढाल हो गई है। शमरेज ने दिन रात स्ट्रगल की। उसकी मेडिसिन से लेकर खुराक तक का वो खुद ख्याल रखने लगा। वो साई की तरह उसके साथ रहता, लेकिन सबसे बढ़कर उसने नूर को अभी तक छुआ भी नहीं। नूर को जैसे यकीन ना आता कि ये वही शमरेज है जो उसे जबरदस्ती खरीद कर लाया था। अब उसकी इज्जत का अपनी अना से बढ़कर ख्याल रख रहा था। वो देख रही थी कि शमरेज अब काफी बदल गया था। वो नमाज पढ़ने लगा और साथ ही साथ एक छोटे पैमाने पर अपना कारोबार शुरू किया। तो वो हैरत में पड़ गई। एक दिन उसने हैरानगी से उससे पूछा कि आपको क्या हुआ? ना पीते पिलाते हैं और ना ही कोई गैर कानूनी काम, क्यों? शमरेज के चेहरे पर धीमी सी मुस्कुराहट उभरी, आंखें गहरे सकूत में डूब गई। वो इसलिए नूर साहिबा कि कल जब वो छोटी नूर मेरी गोद में आएगी तो मैं नहीं चाहता कि कोई उसे ताना दे कि तेरा बाबा तो बुरा आदमी है। नूर का दिल जैसे धड़कना भूल गया। छोटी नूर मतलब? शमरेज ने धीरे से नजरें उठाई। छोटी नूर, आपकी और मेरी होने वाली बेटी, कभी तो आएगी जब आप हम पर मेहरबान होंगी। उसकी ज़ुमाइनी बात पर नूर ने नजरें चुरा ली। शिद्दत जज्बात से उसकी पलकें लरसने लगी। फिर न जाने क्या हुआ कि वो दौड़कर शमरेज के करीब गई और अपना चेहरा उसके चौड़े सीने में छुपा लिया। शमरेज उसकी इस अदा पर पहले तो हैरान हुआ और फिर सुकून से आंखें मूंद ली। उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि नूर उसकी मोहब्बत को कबूल कर लेगी। वो तो अल्लाह से किए गए वादे पर कायम था कि जब भी नूर कहेगी वो इसे इस रिश्ते से आज़ाद कर देगा। लेकिन जब नूर उसके सीने के साथ लगी तो उसे लगा कि जैसे अल्लाह ताला ने नूर के दिल में इसकी मोहब्बत डाल दी हो। तो उसका मायूस दिल एकदम से तेज तेज धड़कने लगा। मोहब्बत की इस कबूलियत पर शमरेज की आंखों के गोशे नम हो गए। लेकिन दूर कहीं दुबई की एक जेल में नूर का सौतेला भाई अपने कर्मों की सजा काट रहा था। एक बदनसीब जो बहन को बेच आया था ताकि अपनी जिंदगी खूब अयाशी से गुजार सके, मगर वो ये बात भूल गया था कि बहनें मान होती हैं। अगर उनकी दुआएं लग सकती हैं तो सोचो उनकी बद्दुआएं तो अर्श हिला देती होंगी। और शायद वो नूर की बद्दुआओं के ज़ेरे असर ही था कि एक तंग तारीक कोठड़ी में अपनी जिंदगी के आखिरी अय्याम तक उसे यहाँ रहना था। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर मज़ेदार कहानी आपको वक्त पर मिलती रहे।